ओरिएंटेशन प्रोग्राम नए नामांकित छात्रों को स्कूल की कार्यनीति और कार्यक्रम से परिचित कराने के बारे में जानकारी देता है। 1 अप्रैल 2023 को कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 10वीं तक के छात्रों के लिए राधा इंस्कैप स्कूल कामोटे का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विद्यालय की एचएम नाजिया शेख ने अपने स्वागत भाषण में अनुशासन, मूल्य और अभिभावक और स्कूल के बीच की साझेदारी के महत्व के बारे में बात की। Virtues like self-discipline, enthusiasm and attitude. Let me introduce you all to the core members of the management. We have among us our respected founder, a renowned educationalist and visionary academician, Dr. Biswajit Mukherjee. His immense experience and support and great advices has always been an asset to the school. Welcome, sir. Somehow, I still remember that I was in a conference and it was a kind of a... Esteemed parents, first of all, let me congratulate you for choosing this organization, Radha Infosap School, 2 years back. Here we have the old parents and the new parents as well. So for old parents, keeping trust, faith, reliance, patience in the organization, we are grateful to all of you. And at the same time, we welcome and congratulate the new admission parents also for taking admission. And from this floor today, I can promise you that you are going to be proud of your decision in future. To proceed further, I would like, today's session is divided in 4 parts. With the blessings of Bappa and Ma Sharde, Ma Saraswati, we have started the event, the program. So first of all, I would like to invite Sir. Before that, I will just give you a brief introduction of Sir, Dr. Biswajit Mukherjee. After that, I will be sharing the slides, the presentation on the teaching learning process, academic planning, post-scholastic, scholastic planning, assessment pattern, role of parents, responsibilities of parents, so on and so forth. I will be sharing that presentation with you all. After that, we have some new initiatives. EduMate, I hope you all are aware of. You have purchased the books and kits also. So we have called their associates. They will be briefing you about what this is all about. Then we have language lab epics, so the representatives are there. And at the same time, we are going to start with online canteen facility service. So Prithvi is there with us. He will be briefing you about. So this is all about today's session. To just start with छात्रों के समग्र विकास के लिए इंस्कैप एजुकेशन के सीईओ और संस्थापक डॉक्टर विश्वजीत मुखर्जी ने अभिभावकों को एक बच्चे के विकास में माता पिता की भागीदारी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक बचपन एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और स्कूल भी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों के साथ मजबूत जुड़ाव रखने और सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने का आग्रह किया। हम सीखते हैं आपसे, हम इन सभी से सीखते हैं। अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आप लोग आते हैं, सवेरे से उठ कर आपकी जो दिनचर्या है, अगर आप उसको देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। घर संभालना मजाक की बात नहीं है, उसके बाद बच्चों को संभालना है। फिर आप में से कई प्रोफेशनल्स हैं। I really salute you all, being the female member of your family, being the mother of your family, being the entirely the energy
छोटा है फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, स्कूल के बाद कॉलेज आ जाता है। और हमारा अगर पैटर्न आप देखेंगे एक फैमिली का, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सुबह उठना है, उठने के बाद में फ्रेश होकर फिर अपना जो रूटीन काम है वो करना है। शायद हाउस होल्ड जॉब में भी बीइंग फादर आप मदर का हेल्प करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चा स्कूल आ जाता है और उसके पहले ऐसे ही बच्चा 3 साल का हुआ, देयर इज अ ह्यूज चैलेंज उसे किस स्कूल में डाला। ये सबकी कहानी है। फिर स्कूल सेलेक्ट होता है तो फिर एक भरोसा, देयर इज अ ट्रस्ट, इज दिस स्कूल इज द अप्रोप्रिएट स्कूल फॉर माय बॉय। व्हाट वी सी व्हेन वी सेलेक्ट एनी स्कूल is only the infrastructure we see. Yes, this is a very good infrastructure. They have a sports arrangement, they have basketball court, they have swimming pool, and there is a huge fees. Are we seeing these all? क्या हम ये देखकर किसी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे को हम डालते हैं? क्या ये हमारा एक स्टेटस सिंबल होता है? मेरी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे फलाना स्कूल में जाते हैं, it's a status because the fees is very high. I should send my ward here so that I should have a social status. क्या ये एक नजरिया होता है? ऐसे कई सवाल जो कि इसकी पेरेंटिंग की, कि बच्चे को नर्चर कैसे किया जाए, उसको कैसे बड़ा किया जाए, उसकी सही खुराक क्या है, उसको कब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसको कब खेलना चाहिए, उसको बोलना किस तरह से चाहिए। There are many things. तो पैटर्न इज कि हमने स्कूल छोड़ा, उसके बाद में फादर अपने जॉब में चले गए, मदर ने अपना हाउस होल्ड जॉब किया, उसके बाद अफेयर हो गई, देन शी स्टार्टेड वेटिंग फॉर द चाइल्ड कि अब बच्चा आएगा, उसको हमने खाना खिलाया। मैंने इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई, डिवाइन स्माइल। एक बच्चे की सवेरे बस स्टॉप पर छोड़ने से लेकर उसकी स्कूल की पूरी जर्नी को हमने उसको रिकॉर्ड किया। फिर मदर ने उसको खाना खिलाया, वो अपने दिन भर का रूटीन मामा को बताता है, आज ये हुआ, आज दिवाली में ये किया, आज ये होमवर्क है। उसके बाद शाम को जैसे जैसे शाम होती है बच्चा खेलने जाता है, आप उसके साथ जाते हैं अगर छोटा है। शाम को डैडी घर आते हैं, आने के बाद वो पूछते हैं कि आज का स्कूल कैसा था। Sometimes you people are helping your wards for doing their homework. ये भी बड़ा मुद्दा है, what is homework और ये क्यों किया जाता है। ऐसे कई चीजें हैं और हर परिवार की अपनी एक स्टोरी आपको मिलेगी, इसमें आपके डायनामिक्स आपको मिलेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर वी नोइंग हाउ टू डू द पेरेंटिंग। क्या हमें पेरेंटिंग आती है? आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन मेनी ऑफ द अदर सेमिनार्स एंड आई गॉट द आंसर, सर मेरे फादर को तो रिक्वायर्ड नहीं था, मेरे पिताजी ने तो कोई पेरेंटिंग की कोई पाठशाला नहीं दी। ऐसा एक पर्सन मैं भी ये आपसे कह सकता हूँ कि मेरे फादर ने भी नहीं ली, लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। But my dear parents will try to understand मेरा वक्त और अब जो आपके बच्चे का वक्त, आपका जो वक्त और आपके बच्चे का जो आपका जो समय है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे पेरेंटिंग के अंदर में क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। कभी मैं आपसे डेफिनेटली मुखातिब होऊंगा, अगर कभी स्कूल की तरफ से कभी बुलाया गया और आप लोगों की इच्छा हुई, एक पेरेंटिंग के ऊपर आपका एक सेशन जरूर से। आज थोड़ी सी समय की वो है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं, एक फैक्ट फाइल आपके सामने रखता हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि हमारे देश में 26.53 CR स्टूडेंट्स हैं। 26.53 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है। आपको अगर मैं ये बताऊं कि भारत के अंदर में टोटल 14.89 लाख स्कूल्स, आपको अगर मैं ये बोलूं कि उसमें से 2.54 लाख सिर्फ शहरी क्षेत्रों के अंदर है, अर्बन एरिया से। मैं अगर आपको ये बताऊं कि इसमें प्राइवेट स्कूल्स जिसमें आपके बच्चे ने एडमिशन लिया वो मात्र 3.40 लाख। The most amazing fact
आपके ये बच्चे भी बड़े होकर क्लास 10 का क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इन्हें ट्रेन करते हैं कक्षा 10वीं के लिए पहला बोर्ड, तो शायद अब नहीं रहेगा। लेकिन इस मंच से बोलने के पहले मुझे उस गजट का इंतजार करना पड़ेगा, जब वो आएगा उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात का प्रावधान किया है, बट स्टिल इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज देयर। बट दे आल्सो सेड दैट इट मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2024। पूरी जो कार्यशैली है वो 2024 तक इम्प्लीमेंट करने की है। ये बड़ी एस्टोनिशिंग फैक्ट है, आपके लिए आश्चर्य वाला एक विषय है। आप देखिएगा, मैं दो फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, ये कितना भयावह है, कितना स्कैरी है। हो गया देखिए कि क्लास 10 prepared स्टूडेंट्स फॉर 2023, ये साल 2023 में कक्षा 10वीं CBSE में बैठने वाले विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है वो है 21.8 लाख। तो ये 21-22 लाख बच्चों के बीच में आपका ये बच्चा कंप्लीट करेगा। मैंने इसलिए आपसे कहा, आपका समय और आपके बच्चों का समय, मेरा वक्त और आपके बच्चों के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क यहाँ है। इसीलिए यूएनओ बोलता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG। ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई। अभी इनको इस एडवर्सिटी से निपटना पड़ेगा। ये साइबर क्राइम क्या होता है हमको सिखाना पड़ेगा। अभी इनको ये समझना पड़ेगा कि जब आज ये मैनुअली मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि सामने ऐसा स्क्रीन होगा, वो सिर्फ स्क्रीन को हवा में हाथ रखेगा और आपका स्क्रीन खुल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। We are trying our level best to educate your wards by keeping all artificial intelligence and all. Educate हमारा रीजन यही है कि उनको यहाँ बुलाने का, कि आप उस बात को समझें। ये पूरा एक ग्लोबल विलेज है माय डियर पेरेंट्स। अब ये कामों पे नहीं जाना, आप इससे बिल्कुल भी उस परसेप्शन से हटाइए, अपने परिवार के उस पैटर्न को, उस डायनेमिक्स को चेंज करिए। यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल। आपको सोचना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपने उस एरिया की पढ़ाई लिखाई की है या नहीं। मैं खुद नहीं जानता कि बहुत सारी चीजें। इंस्कैप एजुकेशन की कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर स्वाति मुखर्जी ने अभिभावकों को स्कूल की आदर्श दृष्टि, मिशन, विभिन्न सुविधाओं के साथ साथ नई शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी दी। रोबोटिक्स और ऑनलाइन लैंग्वेज ऐप जैसी नई पहलों को राधा इंस्कैप स्कूल ने की शुरुआत। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अभिभावक भारी संख्याओं में शामिल हुए। अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल की शिक्षा प्रणाली और सभी अध्यापिकाओं की तारीफ की। My child now is in 4th class, so I am associated with Radha Inscap since 2020. It's starting from their, the building. Are you satisfied with whatever they Yes, definitely. See, even though lots of school are there in the Kamote and nearby premises, but still I prefer this Radha Inscap school because of their commitment. Because as they are saying, the learning outcome is one of the major aspect. So based on that, I can see my child is growing like that only. So that is the one of the major key aspect that my child still is with the Radha Inscap. That is the major thing. See, as I say, I'm associated with since 2020. It's being 2 years, okay, and I can see they are whatever they committed, they have delivered. That is not only the things like they are saying just for taking the admissions, but they are delivering their commitment. That is one of the major parts. So that's the reason I'm still associated with the Radha, and moving forward I'm confident that my child also grows like that only. Yeah, definitely. If you go like the cost and the infrastructure, you cannot get the final outcome for your child. So I must recommend it. Please visit the Radha Inscap and take your child ahead. If I talk about this fee structure, I must say Mr. and Mrs. Mukherjee has taken that initiative for the learning outcome only.
fees just is like the whatever the other school are taking in comparatively Radha Escape is not as much that high, but yes, whatever they are giving the amount, they are definitely return back to us. That I must say. New parent from Radhai Inscap School. I'm really glad to join this school because the principal is really a friendly nature teacher principal, and really she cooperates with the students. So I think I will have a good decision joining this firm for my kids having a bright future. My main thing is the focusing of children with good curriculum and a specific skill of studies, and every specific student is taken under each teacher's guidance. It is all that the principal is the great faculty teacher and a great personality woman. With her guidance only we are adjusted our students to this school. Yeah, surely, surely. Well, just go and add your good wills and good journey for your kids with Radcliffe Inscap School. Thank you. So overall, I liked the school. I liked everything about it. The program which is जब पूरा यहाँ पे जो सिस्टम ये किया है और पूरा इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसे ऐसा तो है कि ओवरऑल उन लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मतलब स्कूल का पूरा ओरिएंटेशन भी अच्छा है और पूरा जो सिस्टम है मैनेजमेंट है वो भी पूरा अच्छे से ये किया है. मतलब पूरा ईयर का स्टडी सिस्टम क्या होगा, कैसे लर्न किया जाएगा, कैसे बच्चों को ये किया जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन पहले से मैम ने दे दिया है. उससे ऐसा मतलब थोड़ा सिक्योर्ड फील होता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा उसे. तो ओवरऑल आई लाइक द स्कूल. राधाई में डाला है तो रिव्यूज़ उसका बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा करके ये किया. मैम एक्स्ट्रा मतलब यही है कि मैनेजमेंट सब पहले से ही मैम ने जैसे बताया कि पहले से ही करिकुलम और प्लानिंग पूरा सब्जेक्ट्स का सब उन लोगों ने पहले से ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया उसके बारे में कि हम लोग को कैसे स्टडी लेना है, क्या करना है, ये मंथ में नेक्स्ट मंथ में क्या पढ़ाया जाएगा, सब उनका इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दिया. तो उससे ज़्यादा हेल्प होगा बच्चों को और पेरेंट्स को भी. यस मैम, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड. लाइक I can assure that I'll be satisfied with this school. Yes ma'am, I'm telling the same thing कि मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट और सब हिसाब से बहुत ही अच्छा है. अभी तक हम लोग का अभी कंस्ट्रक्शन अभी ये हो जाएगा जून से ना मैम, जून से स्टार्ट हो जाएगा. बट स्टिल आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट. इट्स नॉट एन इशू विद द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल. It's all about studies and the management and the people and mostly the teachers. इसी तरह कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर स्वाति मुखर्जी ने मीडिया से बात करते हुए इस कार्यक्रम की जानकारी और उसकी विशेषता बताई. So that is what I tried to include in my presentation. That first of all is the planning, and then the implementation and execution and the monitoring. And you must have seen I've shared some sample sheets which talk about what all we are going to deliver, and we are going to share the same with the parents after the completion of each content, each concept, each month, so that they can cross it check whether what all we have discussed is completed or not. So our testimony is very open and transparent here. So extracurricular in the terms of like we lay equal emphasis to co-curricular activities also. Co-curricular calendar also is planned and shared with the parents. In addition to this, as per NEP, that is New Education Policy, and as per CBSE guidelines, we have included subject enrichment activities. They are in the syllabus and curriculum itself. In addition to this, the talks which are going on is about the language lab. So we are going to associate with them EBIX language lab, smart classes, and the EduWait, which will be giving the detail about, the representatives are giving detail about artificial intelligence, coding and computers and robotics, which is the need of the hour. So these are the extra benefits and facilities we are going to include from this session.
the revolutionary changes are taking place in the field of education, and we are really grateful to our Honorable Prime Minister Modi ji for this new education policy we have started implementing. And in my today's presentation, I have showed the apple to apple comparison what NEP talks about and how we have inculcated NEP in our curriculum. So, and we are waiting for Modi ji to announce One Nation, One Board very soon. The talks are going on. कैमरा पर्सन अमर राउत के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट कामोठे।